फिटलाइन के फाउंडर एंड इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लीडिंग इक्विपमेंट कंपनीज। वो पहली इंपोर्ट मेरी थी $1944 की एंड माय डैड वाज प्रेइंग कि ये शिपमेंट ना डूब जाए। लड़के जिम खोलना चाहते हैं, ठीक है, हर बंदे के जिम खोलना। व्हाट आर सम ऑफ द की लर्निंग्स? व्हेन इट्स अबाउट योर बिजनेस you need to keep your emotions aside. इक्विपमेंट में कितना पैसा जाता है आपके हिसाब से, एंड इंटीरियर के ऊपर कितना पैसा मतलब कि बंदे को लगाना चाहिए? Always controversies happen, you know, कुछ ना कुछ हो रहा होता है. So how do you manage to strike that balance and stay completely controversy free, at least by and large? मैं उसके भी साथ हूँ, मैं उसके भी साथ हूँ. हरमीत पाजी को गुस्सा किस चीज़ पे आता है? If something wrong happens ever with me, मैंने एक बारी आपसे बात कर ली, दूसरी बारी फिर कोई बात नहीं समझ आ रही, तो then I quit for life. मैं फिर कभी भी किसी को अपने साथ कनेक्ट नहीं करता. हाँ जी, वेलकम टू बॉस शो। एंड आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट है हमारे, मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। एंड द मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल कि मतलब कि जब मैंने इंडिया में एंट्री की, ही वाज वन ऑफ द की पीपल कि जिन्होंने मुझे एक ब्रेक दी एंड पिछले 9 साल में हमेशा सपोर्ट की। कभी भी मुझे कोई होती है प्रॉब्लम, कोई एडवाइस, I pick up the phone, I call Paji, how do I do it? And invariably 99.99, 100% times he has a solution for me. चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी लेवल की क्राइसिस हो. So I'm very grateful कि I have the privilege to have him in our office. फिटलाइन के फाउंडर एंड India's one of the largest and leading equipment companies. मतलब कि you can say it's a gold standard for anybody now, you know, especially in the last 3-4 साल में जो पाजी ने ग्रोथ की है and जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, it's very inspiring for all of us. So पाजी, thank you so much for taking all the time. I know how busy you are, बड़ी मुश्किल से हम लेके आए हैं पाजी को. So पाजी, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना था in depth, you know, कि see what you are. There is always a childhood component in it. कि ना मतलब कि बचपन में good or bad, whatever, there are some. I want you to actually 30 seconds लेके रुक के, I want you to share something कि what shaped you. How was your childhood? कैसे था? मतलब कि we see your success, right? We see, you know, Mercedes and Rolls Royces and all that stuff and business class and, you know, holidays every 3 months. वो सब दिखता है. But I'm sure there is a childhood component. I want you to share that. How was growing up for you, like the first 15-16 years of your life? Paji, I grew up very, very simple. Our parental business was bicycle parts, and it was a good business. I can't regret about whatever was there, but it was a kind of a thing, like after partition, your grandparents and all those people who settled here and there, probably my dadaji was one of them to settle into India. He chose this business of bicycle parts. हमने सबने उसको किया. मैंने 94 तक उसको किया. I joined my dad in 1990. I did that business for 94. उससे पहले स्कूलिंग बड़ी अच्छी थी मेरी. उससे पहले फैमिली टाइज और सब कुछ बड़ा अच्छा था. जैसे बाकी बच्चे होते हैं वैसे ही मैं बड़ी मार खा खा के बड़ा हुआ हूँ. हरकतें सारी मस्तियों वाली थी. I did a lot of mischief in my life. तो इंस्पायरिंग ये था कि मैं सपने बड़े देखता था. I used to dream a lot. और सपने भी देखने और छोटे देखने हैं, वो मेरे को कोई समझ नहीं लगती इस बात की. तो सपने हमेशा बड़े देखता था. On a Bajaj super scooter I used to watch big cars, not just a Fiat or Ambassador. मैं उसके भी ऊपर की गाड़ियाँ देखता था, क्योंकि ड्रीम फिएट एम्बेसडर कभी था ही नहीं. तो ड्रीम्स हमेशा बड़े रखे, एंड दैट वाज द काइंड ऑफ वे आई यूज्ड टू लिव. उसमें ही देख देख के कहीं पहुँचाऊँ तो पहुँचाऊँ, अदरवाइज अगर ना देखे होते तो सपने उसी अपने पापा जी की हट्टी में बैठा होता. How was like आपका वर्क एथिक इज ऑब्वियसली, यू नो, दिखता नहीं है लेकिन मुझे पता है, राइट, कि where did that come from? See, my dad was very instrumental in all this. Probably he made me work very hard. I was with him for 4 years of my career. Probably I finished off my graduation in I did my schooling in 1990. While I was being graduated,
Alongside, I was also working with my dad. Third thing I was doing along with that was NIIT. That was the course everybody wanted to do, some computer course and do this and that, and I was doing that in 1990. So till 94 I was very strongly working with dad, and my dad used me as a labor. So that was quite instrumental. Yeah, my dad used me as a labor. He made me do everything. उन्होंने मेरे से हर वो काम करवाया जो आप किसी भी अपने ऑफिस के किसी भी लड़के से करवाते हो. ये उठा के इधर रख, ये बोरियां लोड कर, ये हाथ काले हो रहे हैं, ये स्कूटर ठीक कराने तू जा, ये गाड़ी ठीक कराने तू जा, 3 घंटे धूप में बैठना है, बैठ के वापस नहीं आना कि गाड़ी दे के आ गया, वो पीछे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यू नेवर नो. तो आई वॉज मेड टू डू ऑल द हार्ड थिंग्स. कोई हमारी मशीन से कोई आदमी अगर कोई बाहर जा रहा है तो आई यूज टू स्टैंड ऑन दैट मशीन कि मशीन बंद नहीं होनी चाहिए. So those kind of things, like I was used everywhere in my factory. So that's the thing that made me very, very strong and knowledgeable about everything that happens in the factories. Everything that can happen in any commercial environment. So, अब आपके 2 बेटे हैं जी, ठीक है. आपकी परवरिश एक टाइप की थी मतलब कि टफ, कि ठीक है नो कॉम्प्रोमाइजिंग, करो घिसाएंगे पता चलेगा आपको. आपने अपने सी यू बोथ ऑफ वन ऑफ योर सन इज स्टिल स्टडिंग, दूसरा वो अभी बॉम्बे में आपका दूसरा बिजनेस संभाल रहे हैं ईसी लाइन का आगे. तो आपने अपने बेटों की परवरिश अपने फादर जैसे आपके फादर ने आपकी की, कितनी डिफरेंस आपने की कि आपने भी उनको रगड़ा दिया कि नहीं, कि जरूरत नहीं पड़ी रगड़ा देने की? मैं उतना दे ही नहीं सकता. तो दे नहीं सकते. हाँ, और जरूरत भी नहीं पड़ी. जरूरत भी नहीं पड़ी. दे वर बॉर्न in a different environment. I was born in a different environment. मेरा फैमिली का सिस्टम थोड़ा सा अलग था. वो थोड़े से उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड घर में पैदा हो गए थे. तो प्रॉब्ली उसके अंदर दे लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ. उनकी स्कूलिंग हमारी स्कूलिंग से थोड़ी ब्रांडेड स्कूलिंग थी, क्योंकि अब बाद में ब्रांड्स चलते हैं स्कूल्स के. तो उनकी थोड़ी सी ब्रांडेड स्कूलिंग थी कि इस स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल में जाते हैं बच्चे. तो उसके बाद for higher studies, my elder one also went to Boston. He did his majors there in 2 streams. Then after he did all that, luckily or unluckily you can say, COVID आया, तो I did not wanted him to stay there. Okay. And it came out to be like a boon for me. वो यहाँ आया, he started learning things from me. वहाँ की उसको knowledge जो थी, जो पढ़ाई से actually आती है knowledge, वो नॉलेज मेरे को लगा अगर अपने पे हमारे बिजनेस पे यूज़ करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड दैट्स व्हाट ही डिड. ही गेव अ डिफरेंट टर्न टू फिट लाइन. उसने फिट लाइन में कई टेक्निक्स, कई आइडियाज़ नए उसको इम्प्लीमेंट किया. क्या ही इज़ वेरी इनोवेटिव. आई डू हार्ड वर्क एंड दीज किड्स यूजली दे डू स्मार्ट वर्क. तो अच्छा कर रहा है नाउ. सो आई हैव मूव्ड हिम टू मुंबई फॉर गुड. वो वही रहता है. ही इज़ हैंडलिंग महाराष्ट्र फॉर फिट लाइन एंड प्रॉब्ली ही इज़ डूइंग अमेजिंग देयर. ही इज़ डूइंग वेरी वेरी सेटिस्फैक्ट्री. तो छोटे वाला जो है ही इज़ इन कैनेडा, ही इज़ येट टू जॉइन मी. बट स्कूलिंग उसकी और सेकेंड वाले की भी परवरिश में बड़ा ज़्यादा फ़र्क है. छोटे वाले थोड़े से कडली होते हैं. दे आर लाइक मोर अटैच्ड. उसके और मेरे बड़े बेटे में 6 साल 6.5 साल का डिफरेंस है. Okay. So probably the younger one is still younger. वो मेरे को लगता है और 2, 4, 5 साल के बाद भी यंगर ही रहने वाला. Okay. तो उसको हम इतनी हार्डशिप्स में नहीं लेकर. हाँ बात है. So he is enjoying his life. He is enjoying his life. Like much better and much different than what I ever lived. Right. मैं आपसे एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन में पूछना चाहूँगा. बिकॉज अभी क्या हुआ पिछले 4-5 साल में ना एंटरप्रेन्योरशिप में बड़ा मतलब एक बज़वर्ड बन गया है. यूट्यूब में इतने सारे आ गए, फिर हर बंदा एंटरप्रेन्योर. पहले होता था आप जब आपने कभी तब बिजनेसमैन तो बिजनेस कर रहे हैं. अब बिजनेस कोई नहीं बोलता है. अब नोबडी कोई बिजनेसमैन नहीं है, अब एंटरप्रेन्योर्स. राइट. सो आपके हिसाब से मतलब कि आपने दोनों पहलू देखे हैं. ठीक है, योर स्कूलिंग वाज गुड बट नॉट लाइक योर किड्स. एजुकेशन का आपके हिसाब से कितनी इम्पोर्टेंस है आपके हिसाब से? देखिए 2 चीज़ें होती है, एक पढ़ा एक गूढ़ा. मैं पढ़ा थोड़ा सा उनके हिसाब से नहीं हूँ, लेकिन गूढ़ा बहुत हूँ. गूढ़ा किया है मेरे को मेरे डैड ने. गूढ़ा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस्ड. Like I was deeply into everything. So that's what my kids have not done.
तो दोनों चीज़ों का मिक्स बड़ा ज़रूरी है एक चीज़ के लिए. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो उनका माइंड है या जो उनकी स्पीड या जो उनका वे ऑफ वर्किंग है वो शायद मैं नहीं कर पाऊँ. कभी मेरे को बंदे एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, वैसे मैं उन पे डिपेंडेंट रहूँगा. वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मेरे को सही बताएंगे तो सही ही लगेगा. Whereas the people who are educated will actually, they will pave their own way. They will draft their own ideas. तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिना एजुकेशन के अगर कुछ किया जाए तो that is going to be a lengthy process, a tedious process. Education will make it much smarter, much better. ये मेरे ख्याल से एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉट एवर यू डू. मेरे को जो आता है वो आता है. But this is a kind of a labor I can do. I can do hard work. But my kids, they are educated. They are doing hard work with much smartness. Smartness. Because हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि आज के अपना बहुत ट्रेंड है, बॉडी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं. तो मेरी खुद की काफ़ी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है. 3 डिग्रियाँ मैं होल्ड करता हूँ. और मेरा ये मानना है कि चाहे वो डिग्रियाँ मैं डायरेक्टली नहीं यूज़ कर पा रहा, लेकिन जो लेसन्स मैंने सीखे हैं एजुकेशन में, दे आर प्राइसलेस. 100%. तो हमेशा मेरा तो ये मानना रहा है कि यार अगर आप हो कुछ भी करो, लेकिन आप एक फाउंडेशन जो आप चीज़ें सीखते हो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाके, मेहनत करना, कैसे सोचना, कैसे एनालाइज करना चीज़ों का, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे फ्यूचर में आप कुछ भी करो आप. ओके, सो 1994 तक आप अपने फादर के साथ आप काम करते हैं. तो फिटनेस इंडस्ट्री में आप कैसे आए? इक्विपमेंट इंडस्ट्री से शुरू किया कि किसी और चीज़ से आपने शुरू किया? नहीं. I never started with fitness equipment. That was a part of my bicycle parts business only that started into fitness equipment. हम जो साइकिल के ऊपर हैंडल ग्रिप लगती है ना, हाँ जी, जो आप साइकिल तो हर एक ने चलाई हुई है, उसकी हैंडल के ऊपर एक ग्रिप लगती है पीवीसी की, प्लास्टिक की. तो वो ग्रिप्स मैंने एक बार किसी फिटनेस इंडस्ट्री वाले को बेची. तो वहाँ से हमारी इंडस्ट्री में, साइकिल पार्ट्स की इंडस्ट्री में क्रेडिट बहुत होता था. इफ आई सेल समथिंग टुडे आई गेट पेमेंट्स आफ्टर 60 days, 90 days. तो सेलिंग इनटू द जिम इंडस्ट्री, उस टाइम जो होम यूज इक्विपमेंट बनाते थे, छोटे स्टेपर्स बनाते थे और होम यूज बाइक्स बनती थी जो घरों के अंदर लोग चलाते हैं घर पे एक्सरसाइज करने के लिए. I will not name any company, but they were very instrumental. They were very supportive at that time. उन्होंने मेरे से ग्रिप्स खरीदी एंड आई यूज टू गेट द पेमेंट देयर एंड देन फ्रॉम देम. तो मेरे को एक बड़ा मतलब मोटिवेशनल था मेरे लिए कि मैं अभी आपको इक्विपमेंट, अभी ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ आपको और मेरे को आप उसी टाइम पेमेंट दे रहे हो. ऐसा मेरी इंडस्ट्री में कभी हुआ नहीं मेरे साथ. तो आई ट्राइड जेलिंग अप मोर इन दैट इंडस्ट्री कि ये इंडस्ट्री कैश रिच इंडस्ट्री है. इसमें क्वांटिटीज़ नहीं थी, क्योंकि जिम इक्विपमेंट बाइसिकल की तरह नहीं बिकता था. इसमें थोड़ा बहुत बिकता था, इसलिए थोड़े ही पैसे बनते थे और वो फटाफट बंदा दे देता था कि इसको बार बार क्या बुलाना है, चलो दे दो यार, ख़त्म करो, ठीक है. तो उस टाइम एक जगह ऐसा हुआ, दूसरी जगह हुआ, तो एक वो टाटा येलो पेजेस आती थी उस टाइम. तो टाटा येलो पेजेस खोल के मैं बैठ गया कि ये भी एक मैन्युफैक्चरर है, ये भी एक इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर है, ये भी डीलर है, ये भी ट्रेडर है. तो मैंने दिल्ली के साथ साथ बाहर की सिटीज़ में भी, पूरा पैन इंडिया, आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग. वेरी टीडियस बट वेरी एक्साइटिंग, वेरी एडवेंचरस काइंड ऑफ. बड़ा पुराना. This is what I want to get a little deeper into. Yeah, you have taken me back to 94, 95. It was very exciting those days. Like मतलब वो 5,000 रुपये की सेल भी बड़ी अच्छी लगती थी. तो 5,000 रुपये की सेल करनी, किसी को 10,000 रुपये की करनी, किसी को 3,000 रुपये की करनी, बट पैन इंडिया एंड देयर वर गुड मार्जिन्स इन दैट बिकॉज देयर वाज नो वन एल्स डूइंग इट. तो थोड़ी सी चीज़ें ऐसी मेरे को इंस्पायर करती रही. उसके बाद मैंने ग्रिप्स के साथ साथ जो आप लेग एक्सटेंशन के रोलर्स यूज़ करते हो, फिर वो मैंने रोलर्स बेचने शुरू किए. फिर जो ट्रेडमिल की बेल्ट होती है मैनुअल, उस टाइम रोलर्स वाली ट्रेडमिल चला करती थी जिसके ऊपर आप मैनुअली भागते हो, रबर की ट्रेडमिल्स होती थी और रबर की बेल्ट्स होती थी. तो उनको हमने बेल्ट्स को काफ़ी बेचना शुरू किया. लोगों को वो चीज़ें मिलती नहीं थी, या मिलती थी तो ज़्यादा बनवानी पड़ती थी, इसलिए लोग बनवाते नहीं थे. मैं ज़्यादा बनवा के 10 लोगों को बेचता था, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा ईजी था उसके अंदर मार्जिन जनरेट करना. आपको एक चीज़ 1,000 रुपये की मिल रही है लेकिन आपको 10 लेनी पड़ेगी तो आप नहीं लेते थे. आप उसके 1,500 देने को तैयार हो लेकिन आपको चाहिए 2 पीस. हाँ जी. तो आई यूज टू लाइक
गेट दोज थिंग्स डन. मैं उसको 10 पीस बनवाता था, 20 पीस बनवाता था, क्योंकि मेरे पास पैन इंडिया कस्टमर था उसके लिए. तो दैट वे द जर्नी स्टार्टेड. मेरी पहली इम्पोर्ट जो थी वो 1998 में थी. वेन्यू से कि जब मैंने फोम रोलर्स जो लेग एक्सटेंशन के थे इम्पोर्ट किए थे, वो पहली इम्पोर्ट मेरी थी $1,944 की. Oh wow. In From the China year or from elsewhere? From Taiwan. Okay, from in Taiwan. the year 1998, $1,944. And my dad was praying कि इसको इम्पोर्ट का भूत लग गया है, ये बड़ी दिक्कत हो गई है मेरे लिए यार, इसकी ये शिपमेंट ना डूब जाए. कम से कम इसके ऊपर से भूत तो उतरेगा कि यार मैंने इंपोर्ट नहीं करनी. बिकॉज ही वाज नेवर इनटू रिस्क टेकिंग. दैट वाज नॉट हिज आइडिया. बड़ा हार्ड अर्न्ड मनी होता है. नोबडी वांट्स टू थ्रो दैट अवे. और हम जिद्दी थे लाइक एनी अदर चाइल्ड. मैं बड़ा जिद्दी था, मेरे को ये करना है करना है करना है. तो फाइनली अलाउड. तो $1,944 की वो मेरी शिपमेंट थी. फोम रोलर्स थे. उसके ऊपर मैंने ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा भरी. थोड़ा मैं नया था ट्रेड में, मेरे को कुछ नहीं पता था कि इनवॉइस पे क्या मेंशन होना चाहिए, कैसे क्या होता है, कौन सा हमारा क्लियरिंग एजेंट होना चाहिए. आई पिक्ड अप द बेस्ट क्लियरिंग एजेंट फ्रॉम इंडिया. उसने मेरी खाल ही उतार दी. इतने पैसे चार्ज किए कि मतलब आई वॉज अनअवेयर. मेरे लिए तो इम्पोर्ट वॉज लाइक हवा. तो वो जितने का मेरे को घर पड़ा, फिर भी उससे डबल प्राइस में बिक गया. Oh wow. तो वो मुझे कहाँ डैड की बातें समझ आनी थी कि तेरी शिपमेंट डूब जाए, तेरा डूब जाए. उसके बाद तो शिपमेंट्स बड़ी होती गई. Right. तो देन आफ्टर दैट आई हैड अ फर्स्ट शिपमेंट ऑफ इक्विपमेंट इन 1998 itself. अच्छा, okay. Spin bikes and home these motorized treadmills. Right. From that it's all on. So you went abroad, अब बाहर जाके कि यहीं से बैठे बैठे ऑर्डर कर दिया, या आप गए बाहर, या मतलब how did that work? पहला ऑर्डर यहीं से बैठे बैठे कर दिया था. And then the equipment I went to Taiwan, Okay. in 1998. That was my first international show I ever went to. Oh wow. Taispo in 1998, and then I bought 40 pieces of equipment, 20 spin bikes and 20 home use treadmills. Oh wow. That was my first ship. 1998 is like where you really कि मतलब कि हाँ अब आपने मतलब कि एंट्री की प्रॉपर फिटनेस. That's the first year I ever imported. 20 treadmills तो बिक गई फटाफट. 20 spin bikes एक साल लगा मुझे बेचने. तो फिर आपने से कहते हैं स्पिन बाइक नहीं, ट्रेडमिल ही मंगवाने. Like spin bike was a wrong choice in the beginning. You know, those are lessons you learn. It is okay. You know, I learned from everything. Treadmill बिक गई फटाफट. रिपीट ऑर्डर भी चले गए, फिर बिक गई, फिर रिपीट ऑर्डर चले गए. देन व्हेन आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई रीच्ड अ फुल कंटेनर. उससे पहले ये LCL प्रोडक्ट्स आते थे, लाइक नॉट अ फुल कंटेनर, इट वाज अ लूज कंटेनर लोड. सो कब मैं कंटेनर पे पहुंचा मुझे नहीं पता. उस कंटेनर को आज मैं 25 कंटेनर पे हूँ, तो मेरे को नहीं पता सब ऑल हाउ इज हैपनिंग. How it's happening. But this see at उस टाइम पे तो मतलब कि I think what year did Fitline, आपने Fitline कब शुरू हुई? In 99 I registered the brand. Okay. Fitline. Before that I was doing it in my dad's company. Dad's company. And then. And how old were you at the time जब आपने ये सारा, if you don't mind me asking? No, I'm not a girl. I was born in 1972, so it was like I was 26 that time. Wow. So pretty young to be doing such aggressive things, you know. Yeah, you need to dream big and probably ready to take risk. I feel if you don't take risk, नहीं यार मैं लगाऊंगा तो पता नहीं डूब ही ना जाए. वो पता नहीं डूब ही ना जाए में आप लगाओगे नहीं, और लगाओगे नहीं तो ग्रो नहीं करोगे. तो अभी भी your nature is still the same कि you yeah, take. Why change? Why change? Why change? I become more aggressive now. Like I love to invest in nonsense things. पता नहीं वो nonsense fruitful बन जाए या nonsense super nonsense बन जाए. But you have to invest. तो आपके हिसाब से मतलब कि you know 24 years ago, 23 years ago, अभी से तब से लेके अब तक मतलब कि how has the industry changed as per मतलब business wise? See, coming back to myself, the industry accepted us very well that time because the players were very less. The industry accepted us well, and now that's the same feeling I have for the other people. I accept them well. Right. I don't take anyone as a competitor. This industry
in India is a very nascent stage right now. अभी तक तो आप 100 लोगों में से पूछोगे तो 3 या 4 लोग जिम जाते होंगे, बाकी लोग नहीं जाते होंगे. So this industry is very big. Probably the industry is evolving. Every time there are new things happening. नए नए लोग आ रहे हैं, नए shows आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी है, नए नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, नए दोस्त हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं. इतना काम है कि किसी के पास भी कम नहीं है. तो इंडस्ट्री इज ग्रोइंग. इट हैज़ ग्रोन मैनी फोल्ड राइट नाउ. मैं 2001 में मैंने कमर्शियल इक्विपमेंट शुरू किया था. Okay. Because 98 I told you I started with my home music equipment. 2001 I started with the brand called Kason. Okay. Kason is a very nice Korean brand. I was the one to bring that to India. I sold it for 6 years. By the time I got Cybex, 2006 में मैंने Cybex ले ली थी इंडिया के लिए. And that was like a step by step rise in the career. तो बड़ी अच्छी लग रही थी. I did not get anything by windfall. तो हर चीज़ को एक टाइम लगा, हर चीज़ के ऊपर पूरी नॉलेज आई, सब कुछ सीखा. उसके बाद आई गॉट अ न्यू थिंग टू सेल, अ न्यू ब्रांड, अ न्यू बेंचमार्क. लाइक यू नो एवरी टाइम आई कुड सी सम ग्रोथ इन माई करियर विच वॉज विजिबल. आप कर रहे हो और मॉनिटरी ग्रोथ है तो वो आपको ही पता है, किसी और को नहीं पता. तो दिस व्हाट हैपेंड विद मी विद फिटलाइन वाज लाइक इट वाज लाइक विजिबल इन द मार्केट के ये 98 में आया है. इसने इस साल अपना इक्विपमेंट शुरू किया, उसके बाद इक्विपमेंट मल्टीप्लाई किए. इस साल ये केसन स्पोर्ट्स लाया, इसने हेल्थ क्लब खोला, नए शोरूम डेवलप किए, नई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स सारी शुरू की पैन इंडिया. उसके बाद he grew up to get into Cybex. Cybex was open and I as a company, very crude company, never got into any American brand. The first time I applied, I got Cybex and I respectfully sold Cybex for 16 years. Then I am the only company in India to say no to any American brand. Otherwise, you would have seen American brands only are the ones who kick you out. Correct. So I was the only company in India who said no, I am not interested to sell you any further. It's only Fitline. So this I did in 21 when I said this to Cybex that let's quit. I'm not interested to sell anymore. So I've seen all that and industry is like changing the way we started our discussion. Evolve हो रही है, gyms बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं. Branded chains of gyms are coming to India. They are like expanding. Everything is like a very positive sign for the industry. Still, you see, considering our population, not even 2% of the people, less than 2% So you are of the not worried about risk of saturation? No. Still, 15, 20 years you don't see that in India. Wow. It's so highly populated. Even 30, 50 more people who come to sell equipment, still the saturation you will not see. Wow. It's a big industry and there are very few people who are actually training right now. That is true, yes. That I understand. Even if just one person more starts going from your house to the gym, you have no gyms left. Trust me, they'll be overcrowded. True. That's true. Because अभी मेरे घर के पास ही मतलब कि एनी टाइम फिटनेस है, उसके साथ 2 शोरूम छोड़ के 3 स्टोरी के उन्होंने जिम खोला है. पता है, आई थिंक AFC है, AKC करके, मतलब कि प्राइवेट ब्रांड ही है, नॉट कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है. आई वाज लाइक वाह, वो भी चल रहा है, वहाँ भी लोग सब चलेंगे सब. और जिम बंद हो गया तो सारी इंडस्ट्री को जर्क लगता है. यस. कोई एक इंडस्ट्री में एक भी जिम चलने खोलने के बाद बंद हुआ. कोविड की वजह से जब हुआ था, दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी चैलेंजिंग टाइम. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द इन्वेस्टर बट इट्स वेरी बैड फॉर द इंडस्ट्री आल्सो. आप इस जिम की वजह से, आप किसी की ग्रोथ की वजह से उस इंडस्ट्री में एंटर करने का सोच रहे हो, यू आर नॉट कनेक्टेड विद दैट इंडस्ट्री. अ ट्रेनर इज प्लानिंग टू ओपन अ जिम. वन ऑफ द मेंबर्स इज एवर थिंकिंग कि यार मैं इस जिम में जाता हूँ, बड़ा लाइफस्टाइल बिजनेस है तो मेरे को भी जिम खोलना चाहिए. But if that gym suddenly shuts down, those prospective buyers are going to take the step back. वो मेंबर भी नहीं जिंदगी में सोचेगा, वो ट्रेनर भी कहेगा मैं नौकरी करता रहूँ, मैं जिम नहीं खोलूँगा. मेंबर सपोर्ट नहीं करते, कंपटीशन हो जाता है, पैसा नहीं आता. जिम नहीं बंद होना चाहिए.
जिम खोला है तो चलना चाहिए। अब देखो पाजी, आप राइनोज भी आपका ब्रांड है, राइट कर रहे हो। बहुत लड़कों का मैं थोड़ी सी इन डेप्थ आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि लड़के जिम खोलना चाहते हैं, ठीक है, हर बंदे का जिम खोलना चाहता है। आपके हिसाब से, बिकॉज आप दोनों तरफ से आपको इक्विपमेंट की भी पूरी इन डेप्थ नॉलेज है, फिर आप जिम्स भी कर रहे हो, फिर उससे पहले आप पिछले 20 साल से जिम्स को आगे सप्लाई करते आ रहे हो। सो आपके हिसाब से अगर कुछ सपोज करो कोई 28-30 साल का लड़का है या ओल्डर या यंगर जो भी है, उसने आज जिम खोलना है, व्हाट आर द 4 और 5 थिंग्स, ऐसी 4-5 क्या चीज़ें हैं कि जिसका उसको ख्याल करना चाहिए? जैसे रेंटल के हिसाब से क्या, व्हाट इज़ अ गुड, इससे ज़्यादा नहीं एक्सपैंड करना चाहिए, इतनी स्पेस चाहिए कम से कम, या व्हाट आर सम ऑफ द की लर्निंग्स और यू कैन एडवाइज समबडी? The gym that you plan to open is for a commercial purpose. That's for you to make money. So first thing I would like to say is keep your emotions aside. Okay. कि मुझे ऐसा सुंदर जिम चाहिए, मुझे उसमें ये भी लगा होना चाहिए, मुझे लगा होना चाहिए, मुझे सुंदर चाहिए, तो अपने घर का बनाओ, not the one which you are planning to open to make money. राइट right. आप इमोशंस, दीवारों पे ये लगाना है, मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को ये चीज़ करनी है, उससे आपका पैसा लेट आएगा. Whatever you put now is going to be the speed of the return that you have from that business. आपको एक मेंबर को क्या चाहिए? मेंबर को चाहिए एक अच्छा साफ सुथरा ठंडा एनवायरनमेंट. मेंबर नहीं कहता कि आपकी दीवार पे ये हुआ होना चाहिए, आपकी दीवारों पे वुड वर्क होने चाहिए, आपको सारा सेंट्रलाइज्ड डक्टेबल एयर कंडीशनिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए. मेंबर कहता है मेरे को ठंडा कूल जिम चाहिए, कूल साफ सुथरा अच्छा इक्विपमेंट जो हर बार साफ हो, प्लीजिंग स्टाफ, अच्छी फ्लोरिंग, सब कुछ चाहिए. कोई वो कहता है मेरे को आपकी दीवारों पे ये होना चाहिए, फ्लोर पे मार्बल होना चाहिए. आपके मेंबर कुछ नहीं कहता, मेंबर को साफ सुथरी चीज़. ये हमारी इमोशंस है एज एन इन्वेस्टर कि मैं ये जिम ऐसा बनाना चाहता हूँ, मैं वैसा बनाना चाहता हूँ. वही सबसे बड़ी गलत चीज़ हो जाती है. व्हेन इट्स अबाउट योर बिजनेस यू नीड टू कीप योर इमोशंस असाइड. क्योंकि अगर आपको बिजनेस में से पैसा कमाना है तो आप 60 लाख लगा के अगर 2 साल में वापस ला रहे हो तो 80 लाख लगाओगे तो वो 2 साल में तो नहीं आने वाला. वो 20 लाख अपना टाइम लेगा ना ज़्यादा लगने का, आने का. तो दैट्स द थिंग which you need to take care while starting the gym. सबसे पहले इमोशंस, उसके बाद एवरीथिंग, एवरी प्लान टू बी ऑन द पेपर, बातों में नहीं. इट सीम्स टू बी अ वेरी इजी इंडस्ट्री और आपको लगता है कि इन्वेस्ट कर दिया और मैं इसको इतना टाइम दूं, इतना ना दूं, तो वो भी गलत है. इट्स अ फुल टाइम इंडस्ट्री. इट्स अ फुल टाइम इंडस्ट्री. यू नीड टू मेक श्योर एवरी इंच ऑफ योर जिम गिव्स यू मनी. राइट. आप अपने हर इंच का रेंट भर रहे हो तो आपको हर इंच से पैसा आना चाहिए. यू हैव टू यूटिलाइज इट नाइसली. यू हैव टू मेक श्योर अगर आपका 3-3.5 हज़ार स्क्वायर फीट में जिम अच्छा खोल सकता है तो वाई टेक अ स्पेस ऑफ 5,000 स्क्वायर फीट. क्योंकि बड़ा लगाना चाहता हूँ मैं, बड़ा लगाना तो चाहते आपके हो तो पॉइंट नहीं बनता. स्वीट स्पॉट क्या कि इससे छोटा लगाना, मतलब कि आपका सामान नहीं आएगा, इससे बड़ा लगाना आपको बस पैसा जलाने के लिए बात अलग है. तो स्वीट स्पॉट क्या है स्पेस के हिसाब से, आपके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू मी और द नॉलेज दैट आई हैव गेन्ड टिल नाउ अपने 20-25 साल के करियर में, तो 3,000 से लेकर 4,000 स्क्वायर फीट के अंदर के जिम्स हाईली सक्सेसफुल. ओके. हाईली सक्सेसफुल. दे मेक मनी, दे टेक लेस और अ गुड रीजनेबल इन्वेस्टमेंट, नॉट ओवर नॉट अंडर. ये एलीट में भी आ जाएगा और बेसिक में भी आ जाएगा. तो ये वन साइडेड नहीं रहेगा. तो 3 से 4,000 स्क्वायर फीट एक ऐसा साइज है जो एक विनिंग पॉइंट है. अच्छा, 3 से 4,000 स्क्वायर फुट का तो चलो साइज हो गया. अब आती है बात कि इन्वेस्टमेंट की, पैसा, ठीक है. इक्विपमेंट में कितना पैसा जाता है आपके हिसाब से 3 से 4,000 स्क्वायर फुट में, एंड इंटीरियर के ऊपर कितना पैसा मतलब कि बंदे को लगाना चाहिए, इफ यू हैव टू स्प्लिट द टू? सी, कंसिडरिंग you are investing, you are setting up this gym to make money. Make money, purely right? to make money. It's not. Some people spend lavishly on the gym. Their शौक पूरा कर रहे हो. their motive or their agenda is to be
like one of the top in the vicinity कि मेरे जिम जैसा कोई जिम होना नहीं चाहिए. Return is not the matter for them. मतलब इतना पैसा है जिसको कोई वापसी आए ना आए. We are not talking about. No. We are talking about career oriented. Career oriented normally जैसे हमारे के जो लोअर मिडिल सेगमेंट है. हाँ. कि जो मतलब के जो ट्रेनर है उसने उसको एक उसका क्लाइंट है लॉन्ग टर्म, ठीक है, वो कहता है ठीक है यार मैं 25-30 लाख में डाल सकता हूँ, कि उसको उसका भी दिल धड़कता है कि मतलब कि हाँ यार कम से कम में ठीक ठाक पैसे बता बजे वो हम बजट लेके चले कि एटलीस्ट मिनिमम कितना चाहिए, उसके नीचे जिम आपका लगना नहीं है. फिर आप ऐसे ना आपके पास इक्विपमेंट है वो है तो वो टूटी जा रही है, या ना आपके एसी चल रहा है. मिनिमम क्या है एंड उससे ऊपर लगाना अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है बात लगे. सो वो साइज का हमने स्वीट स्पॉट देख लिया कि 3 से 4,500 400 स्क्वायर फीट है. क्योंकि 2,000 का खोलोगे तो आपके पास पूरी इक्विपमेंट लगेगी, वो नहीं आएगा. आपका कई चीज़ें आपकी जो सोचते हो आपके यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप एक्स होना चाहिए. हाँ जी. आपको मतलब हार्डकोर लोगों को प्लेट लोडेड इक्विपमेंट भी अच्छा लगता है. यू हैव प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स ऑल्सो और सम पीपल हु रियली वांट टू वर्क आउट हार्ड. कोई इक्विपमेंट नहीं आप दे पाओगे. आप गर्ल्स के लिए इक्विपमेंट पूरा नहीं रख पाओगे बिकॉज दे नीड मोर ऑफ सेलेक्टराइज्ड प्रोडक्ट्स एंड कार्डियो. हाँ जी. सो एंड नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट कि देयर एक तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होगी आपकी इक्विपमेंट एंड इंटीरियर की, इनका स्प्लिट भी है. इज देयर अ स्वीट स्पॉट फॉर द स्प्लिट के कितना काइंड ऑफ इफ यू आस्क मी आपकी जो इंटीरियर कॉस्ट है वो 800 से 1,200 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन. ओके. Tier 1, Tier 2, Tier 3. सो आई कांट सिंपली से 1,000 रुपीज. श्योर. आपकी उससे 200 रुपये सस्ती भी हो सकती है, उससे 200 रुपये ऊपर भी जा सकती है. अभी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो दिल्ली और बॉम्बे में ही इतना फ़र्क आ जाता है एक जिम को कंस्ट्रक्ट करने का, उसके इंटीरियर्स करने का. इक्विपमेंट एनीथिंग फ्रॉम 20 to 30 lakhs makes it a very reasonable gym, and it can complete everything in that, including cardio, including strength, including plate loaded products. Okay. तो अगर आप इसको मतलब 30 लाख 32 लाख 35 लाख मैक्सिमम लेके चलोगे तो you will have much more quantity of dumbbells and plates which everybody wants. And nobody wants to wait in the gym. तो ये चीज़ हो गई. अब आपको जो जगह है उसका साइज मैंने बता दिया. अगर आप लोग बेसमेंट में खोलते हैं तो चीज़ है कि उसकी हाइट देख के खोलें. बेसमेंट्स यूजुअली लोग 8-8 फुट की हाइट रखते हैं. सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो. आप फ्लोरिंग लगाओगे नीचे कुछ भी करोगे तो 1-2 इंच उसमें भी जाएगा, तो वो 8 फुट और नज़दीक आ जाता है आपके सर के. राइट. तो ये थोड़ी सी चीज़ें देखने वाली हैं. मतलब अगर आप बेसमेंट में लगा रहे हो तो इट शुड हैव अ गुड हाइट. नहीं तो उस एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे लगाने का कोई पॉइंट नहीं है. यू विल गेट दोज एक्सपेंसिव ऑन रेंटल क्योंकि इट्स नॉट अ शोरूम. यू आर नॉट गोइंग टू सेल एनीथिंग. मेंबर इज़ ओके टू गो बाय लिफ्ट टू अ सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर. आप ऊपर लगाओ जिसका रेंटल सबसे कम है क्योंकि रेंटल आपने हर महीने भरना है. एक बार ही भरना हो तो यू कैन डू एनीथिंग. करेक्ट. बट समथिंग यू हैव टू पे एवरी मंथ. तो आपको उसको रीजनेबल लेके चलना है. आपको एक जिम की एम्बियंस के लिए उसकी हाइट की बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन करनी है. मोस्टली पीपल लुक फॉर बेटर रेंटल एंड दे एंड अप टेकिंग बेसमेंट्स. बेसमेंट में हाइट सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक है. उसकी हाइट अच्छी है तो बेसमेंट्स कैन वर्क. इन्वेस्टमेंट आपको मैंने बता दी. मतलब एनीथिंग फ्रॉम 20 to 30-35 लाख you get the good gyms done up, all done and very nicely looking gyms. 800 to 1,200 rupees per square feet is the cost of the interiors. All done. All so set. basically when we are calculating for a viewer's purpose कि जब हमने करना है सपोज करो 1000, वो 1000 स्क्वायर फुट रुपए टोटल जो हमारा फ्लोर का साइज है उससे मतलब कि उल्टे पे इसके अंदर आपका फर्नीचर भी आ गया, एयर कंडीशनिंग भी आ गई, इसके अंदर आपका वेट एरिया भी बन गया, फ्लोरिंग भी बन गई, इसके अंदर आपकी वॉल्स की पेंट पीओपी जो भी होना है वो सब हो जाता है इसके अंदर. ओके. सो मतलब 1000 रुपीस आप लेके चलो मिनिमम. दिस इज द स्टार्टिंग बॉल पार्क फिगर. कोई इसमें obviously. कोई चीजें नहीं करना चाहता है. कोई रिसेप्शन इतनी छोटी डाल देता है या कोई रिसेप्शन बनाते नहीं. कोई जिम्स वो सिर्फ टेबल चेयर लगा के बैठ जाते हैं एज यू हैव सीन द ओल्डर जिम्स. हाँ जी. तो वो कॉस्ट नीचे आती जाएगी. वी आर ऑन अ साइड वेयर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड.
एंड आपके एक्सपीरियंस में मतलब कि बिसाइड्स के ओवर स्पेंडिंग कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, ओवर स्ट्रेचिंग योरसेल्फ, व्हाट आर सम अदर मिस्टेक्स दैट यू थिंक पीपल मेक जनरली इन जहाँ पे जिम फेल होते हैं आमतौर पे? They don't give time to the business. Okay. It's like when they think that trainers can run the show for you, they will not. The investor has to be there, and then the planning has to be as per the local vicinity. आसपास के gyms के competition को देख के नहीं करते. हर एक को अपना बच्चा बड़ा प्यारा लगता है कि मैं तो इतने पैसे लूँगा अपनी जिम के, मेरे ये पैकेज निकलने चाहिए, तो दूसरे को भी अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये भी देखना है. हो सकता है मेंबर, आपका जिम आपको अच्छा लग रहा है, मेंबर को लगता है कि आपके साथ वाला जिम आपसे बेटर वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, तो यू हैव टू ऑलवेज वर्क एज पर द कंपटीशन अराउंड यू. तो वो एक बड़ा मेजर पॉइंट है जहाँ लोग इमोशंस में आते हैं कि मेरा जिम बड़ा सुंदर है, मैंने इतना पैसा लगाया है और मेरे को इतना पैसा अपनी मेंबरशिप करिए. जहाँ वो फेलियर हो जाते हैं, बाद में डिस्काउंटिंग्स होती हैं. डिस्काउंटिंग्स में आप उस ईगो में रहते हो कि नहीं यार बुरा लगेगा, मैंने अभी तो ये प्राइस निकाला था, डिस्काउंट दूँ ना दूँ, और उस कहीं ना कहीं ये सारी जितने भी ये चीज़ें चलती हैं इसके अंदर वो आपका रेवेन्यू फॉल कर जाता है. रेवेन्यू फॉल करता है तो आपका इंटरेस्ट जिम जाने का ख़त्म हो जाता है, और जब आप जिम नहीं जाते तो क्या होता है, चोरियाँ होती हैं, मेंबरशिप बिकती है, आपके पास नहीं आती क्योंकि आप जिम में नहीं हो. वर्कआउट कर रहे हैं मेंबर, दे आर पेइंग समथिंग टू योर पीपल बट नथिंग इज कमिंग टू यू. आपकी इज दिस अ कॉमन प्रॉब्लम बाजी इन लोअर एंड पे? नजर हटी दुर्घटना घटी, ये हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ये है, ये नजर हटी दुर्घटना घटी. आप गाड़ी चला रहे हो, थोड़ी सी नजर इधर उधर जाएगी तो लगेगी. इसमें आप सोच के रखो कि ये नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, तो हम बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रह रहे हैं. सब कुछ होने वाला है और हमें अपनी सेफ्टी को लेके चलना होता है. हमें बिजनेस को टाइम देना है, हमने अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को रेडी रखना है. पर्सनल ट्रेनिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बिकती है जिम में, जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैटर नहीं है. ये एक एडिशनल रेवेन्यू है जो आप इसमें से कमा सकते हो. फिर सेल ऑफ सप्लीमेंट्स इज पॉसिबल इन अ जिम. जब आप नहीं हो जिम में तो ये सब कौन करेगा, वो सब बिकेगा, पर जितने का बिकेगा आपको उतनी वैल्यू नहीं बताई जाएगी. पर्सनल ट्रेनिंग दी जा रही है लेकिन आपको बताया जा रहा है कि पर्सनल ट्रेनिंग नहीं है, ये जनरल ट्रेनिंग हो रही है मेरी. मैं सिर्फ ये बात कर रहा था, मैं वो बात कर रहा था, जबकि ट्रेनिंग हो रही है. ट्रेनिंग हो रही है, करेक्ट. तो मैं किसी को मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जिसको तभी रोका जा सकता है, या जिसको तब आप इसे प्रिवेंट कर सकते हो जब आप अपनी इस बिजनेस को एक सीरियस बिजनेस वेंचर समझ के इसको पूरा टाइम दोगे. यू कीप योर आइज ओपन देयर. राइट. आजकल पर ये पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियोज का भी एक काफ़ी कॉन्सेप्ट पिछले 4-5 साल से आया है. उसमें आप इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हो, उसमें मतलब कि आजकल बंदा कहता है कि मेरे पास 10-15 लाख का है, मुझे सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो खोलना है, मुझे कोई जिम नहीं खोलना है जो मतलब कि 800-1200 स्क्वायर फुट का, 1500 स्क्वायर फुट का एट द मोस्ट. Any experience in that line? Yes, of course. Selling the equipment, we come across all sorts of customers. Personal studio में we have one of our athlete also. She has her own personal studio. Okay. Personal studio के benefit ये हैं कि एक तो आपकी investment के बाद you don't have to split your earning with your gym owner. हाँ जी. Right? So बेटर सेंसेस कि अगर मैं ये इसको इन्वेस्ट कर लेता हूँ, ये जगह मैं अगर थोड़ी सी ले लेता हूँ, तो आई हैव माई सेट क्लाइंट्स हु आर ऑलवेज कमिंग टू मी, एंड इफ आई गिव रिजल्ट्स, वो लोग आपकी पब्लिसिटी खुद ही करते हैं. आप 2 मेंबर्स को ट्रांसफॉर्म कर दो लेजिटिमेटली, वो 2 मेंबर्स 20 लोगों को बोलते हैं, 20 लोग 40 को बोलते हैं, एंड यू आर नॉट अ हेल्थ क्लब, फुल फ्लेजेड हेल्थ क्लब. करेक्ट. तो आप 100 लोगों को जिम में एक्सपेक्ट भी नहीं करते, ना उनको हैंडल कर सकते हो. Because it's a personal training studio, you might have a couple of more trainers supporting you. Rest, you are there all the time. And as you are doing any job in a gym, it's the same way. You are giving full time to that personal training studio, and people are paying to you, and all money is yours. उस केस में जो यहाँ gyms, जो छोटे स्टूडियो बनते हैं, personal training studio, वो आपके 10 से 12 लाख रुपए के इक्विपमेंट के अंदर 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के अंदर बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत अच्छे.
So with the investment of 20 lakh or maybe lesser than that, a trainer which has reached the threshold कि इसके ऊपर मेरे पास growth नहीं है, this is the plan that he can follow. He can open his own personal training studio, इतनी investment करता है और वहाँ का सारा revenue उसका खुद का है. Correct. Yeah, that's true. Okay, so going back to your some business lessons that you've learned over the years कि मतलब कि हाँ कि ये नहीं करना है या ये मतलब कि some do's and don'ts as far as you in your journey of 25 years, you know, like there's always some lessons like मतलब कि जो आपने कर लिए मतलब कि then कोई दूसरा बंदा unless he has the same personality as you, that's different, कि some do's and don'ts as far as you are concerned in business, some key learnings. The best thing which I do usually is to follow a leader. Okay. मैं इधर उधर वैसे numbers नहीं देखता, लेकिन जो कोई कुछ अच्छे काम कर रहा होता है तो उसको follow ज़रूर करता हूँ. But I don't follow anyone in what they are doing because otherwise I don't spend much time in my business. Correct. मेरे को अपना business करना है. I have control on my numbers, not the control on other numbers. अब आपके ऑफिस में आपके business में कितने का बिजनेस हो रहा है, आज सेल हुई है नहीं हुई है, वो मेरे हाथ में नहीं है. अगर मैं उसके बारे में सोचता रहूँगा और मेरे को पता लगा कि आपने आज कोई सेल किया तो मैं परेशान हो जाऊँगा. ठीक है, तो बेटर इज कि आई डोंट लुक हेयर एंड देयर. मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ. मेरे ऑफिस में कल क्या हुआ था और आज मुझे उसको सरपास करना है, तो आई कंसिडर माई yesterday as my competition. Which so basically minding your own business. I mind my own business. मैंने पिछले महीने कितना बिजनेस किया था, मैंने उसको सरपास करना है, बजाय कि मैं दूसरे को देखूं कि वो क्या कर रहा है और मैं उसको सरपास करूं. उसका बिजनेस मेरा बिजनेस बहुत अलग है. मैं नहीं जानता कौन है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. मैं अपने आप को जानता हूं. मैंने क्या किया था पिछले महीने, मैं उसको क्रॉस कैसे कर सकता हूँ, अगले महीने उसको क्रॉस कैसे कर सकता हूँ, अपने लेजिटिमेट गोल कैसे फॉर्म कर सकता हूँ और अचीव कर सकता हूँ. वो मेरे हाथ में है. उसका कंट्रोल, उसकी रिमोट मेरे पास है. आपके ऑफिस में क्या हो रहा है, आपके कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, वो मेरे को पता नहीं है. लेकिन अगर मैं उसका सोचता रहूँगा तो खपता रहूँगा, सड़ता रहूँगा अपने अंदर, which I don't do. And do you think ये एक मतलब कि एक one of the reasons है कि जैसे आपने you have managed to largely stay out of all the controversies जितनी भी होती हैं, मतलब कि you are never really and pressure I'm sure आता होगा कि मतलब कि पाजी मेरी तरफ से कमेंट करो या मेरी तरफ से स्टेटमेंट दो या मेरी तरफ मेरे साथ जुड़ो. So how do you manage that, especially हमारी इंडस्ट्री, fortunately unfortunately, like every industry, like Bollywood को ले लो, कोई भी ले लो, there's always controversies happening, you know, कुछ ना कुछ हो रहा होता है. तो आप मतलब कि इतने सारे लोगों के क्लोज हो, right? So how do you manage to strike that balance and stay completely controversy free, at least by and large? People know me very well, so they don't ask me to do anything. Okay. Secondly, if at all my athletes are also involved into any kind of controversy or they are commenting on this, they are losing their path, I usually take this liberty to call them and tell them to stay away from these kind of things. This actually hinders my brand as well as their image also. Correct. So जिसके भी जो भी कंट्रोवर्सीज हैं वो बाद में सॉल्व हो जाती हैं और जो बीच में आया होता है वो एक ना एक का दुश्मन बन जाता है, वो रगड़ा जाता है. तो देयर इज नो पॉइंट गेटिंग इनटू एनीथिंग. जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी बात पे, वी डोंट वांट टू बी इन दैट क्राउड. स्टे अवे, स्टे अलूफ. मैं उसके भी साथ हूँ, मैं उसके भी साथ हूँ. मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके साथ भी नहीं हूँ. खत्म. कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता. करेक्ट. आई एम वेरी सिंपल पर्सन. आई माइंड माई ओन बिजनेस. दैट्स गुड. आपने एथलीट्स की बात की, दैट वाज वन ऑफ माय की अदर क्वेश्चन मेरा जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आजकल मतलब कि इन्फ्लुएंसिंग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उनकी पॉपुलैरिटी वगैरह के लिए. एंड बहुत बच्चे स्टूडेंट्स एथलीट्स पूछते हैं, सर मुझे हमारे पास भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एथलीट्स हैं, स्पॉन्सर्ड एथलीट्स भी हैं. सो एज अ ब्रांड, लाइक अगर आपने किसी को एडवाइस देनी हो जो देख रहे हैं एथलीट, कि व्हाट आर द 4-5 थिंग्स एज अ ब्रांड. हर ब्रांड की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो अलग अलग चीज़ें देखते हैं, बट लेकिन कुछ एक यूनिवर्सल भी होती हैं कि हाँ मतलब कि ये हर ब्रांड चाहता है.
आपके हिसाब से कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर, हम पेड इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं, राइट, पेड की, तो एज अ ब्रांड आप क्या 3 4 5 चीज़ें देखते हो, एंड व्हाट इज द जनरल, आई मीन ऑब्वियसली इट्स हार्ड कि जनरल पे स्केल क्या है, आई मीन इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग दैट, but at least 2 पार्ट हुए क्वेश्चन के, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट इज योर एडवाइस, आप एथलीट्स को क्या एडवाइस देते हो कि भाई ऐसे करो एंड देन यू कैन सीक टू आस्क मनी. But if you see these serious bodybuilders, serious physique trainers, classic bodybuilding people, they are very humble. They are very nice. They just love to train, and they are the ones who actually are influencers also. They love to train. They want people to see them. They want popularity also. They want the credit of what they have done. So lifting best people, picking up the best people from the market is like, it's a tough job, but what we see is, first thing is that they have to be very, very humble. They should not be the ones who refrain from getting clicked, और उनके बीच में मैनेजर किसी का किसी को रोक रहा है, कोई किसी का किसी को रोक रहा है, and they forget that they are made by their fans, because of their fans, and now they if they are not humble, then that's not what I like. Do you sorry to interrupt, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि मतलब कि आपके स्टाफ ने आगे से कि जो यंग जो एथलीट्स हैं, जिनको मतलब कि या इन्फ्लुएंसर एथलीट्स भी नहीं हैं, वो सिर्फ मैं सोशल मीडिया, जिनको काफ़ी रैपिड फेम मिल गया, फटाफट 2-3 लाख फॉलोअर्स हो गए, 500,000 फॉलोअर्स हो गए, एंड यंग हैं, फीमेल्स भी या मेल्स भी, स्पेशली फीमेल्स में, हैज़ योर स्टाफ एक्सपीरियंस के एक उनमें एक एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा जो सीनियर बॉडी बिल्डर्स में वो एटीट्यूड नहीं है, या आपने मतलब कि डिफरेंस नोट किया कि मतलब कि इट्स मोर ऑफ अ मिथ? ये नेचुरल है. अगर एटीट्यूड अगर आ जाता है किसी में तो ये नेचुरल है, क्योंकि इसका एक टाइम फ्रेम है, इसके अंदर वो पॉपुलर है, उसके बाद वो पॉपुलैरिटी सेम नहीं रहती, तो ही वॉन्ट्स टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. ये जो 5 7 10 साल जो होते हैं, everyone wants to create that aura of himself और image of himself, जिस पे वो अपने आप को एक पॉपुलैरिटी लेवल पे रख सकता है. तो वो उसका सब कुछ करना चाहता है उसी 10 साल में, कि मैं एटीट्यूड भी रखूं, मैं मैनेजर भी हो मेरे पास ये भी हो, मैं डायरेक्ट किसी से बात ना करूं. तो इसमें कुछ गलत नहीं है, हर एक की थॉट है, मैं उसको भी गलत नहीं बोलता. और जो हम्बल हैं, जो ये सब नहीं करेंगे, वो सीधे सीधे ही चलते जाएंगे और बढ़िया तरीके से फिर भी काम कर रहे हैं, मैं उनको भी गलत नहीं बोलता. दोनों अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है. मैंने कहा ना आपको, आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं, और जजमेंट तो खास कर नहीं कि ये गलत है ये सही है. हमारा सिलेक्टिव क्राइटेरिया है, मैं उस एथलीट को नहीं पिक करता. ओके, दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू द लाइक यू नो मेन थिंग, कि ये सिनॉप्सिस है, मैं उस एथलीट को नहीं पिक करता जिसको वाया करना पड़े, और एक है जो डायरेक्ट है. एंड डू यू थिंक ये मतलब कि दिस इज अ कॉमन थिंग, बिकॉज आपके एज के और बहुत सारे मतलब कि इंडस्ट्री लीडर्स हैं, डू यू थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ शेयर्ड थीम अमंग्स डिफरेंट, अब जैसे अब सुहेल से काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हो, इतने सारे और इंडस्ट्री, गगन जी हैं, इतने सारे और हैं, डू यू थिंक दिस इज अ शेयर्ड थीम के मतलब कि कोई भी ब्रांड है वो ज़्यादा नखरे वाले एथलीट को नहीं लेना पसंद करते, वो हम्बल लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अनलेस के कोई उसकी बहुत ही लेजिटिमेट 2 मिलियन 4 मिलियन के फॉलोइंग है, चलो बात अलग है. Do you think this is a shared theme amongst different businesses? I seriously don't think it's a shared idea amongst all, because what my way of working is, like, I don't put any pressure on them. मैं उनके साथ कोई एग्रीमेंट्स नहीं करता कि आपको इतनी पोस्ट करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा. तो मेरे हिसाब से एक फैमिली फील रहती है. दे आर क्लोजर टू मी, आई एम क्लोजर टू देम. सम कंपनीज आर इन्वॉल्व इन अ वे कि मैं मतलब इवन द बॉस विल नॉट मीट द एथलीट्स, उसके अंदर आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, तो देयर इज नो रिलेशनशिप, इट्स प्योरली कमर्शियल. तो उसके अंदर एथलीट किसी भी लेवल का हो, क्या उसके बीच में मैनेजर है क्या नहीं है, उनका उसको कनेक्ट होने का एक क्राइटेरिया अलग है, मेरा वो नहीं है. हर एक के अपने अपने हैं. सुहेल
इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन. उसका और मेरा बिजनेस बड़ा सेपरेट है, बड़ा काइंड ऑफ डिफरेंट बिजनेस है. वो सप्लीमेंट्स में है, बादशाह आदमी है, वो अलग तरीके से काम करता है. उनको एथलीट्स का एक जो रोल चाहिए वो रोज़ पे या पर पोस्ट चाहिए. मेरा ऐसा पर पोस्ट नहीं है. मेरे लिए वो एथलीट जो है वो एक जेनरिक बैकग्राउंड में भी मेरा इक्विपमेंट कहीं दिख जाता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड थिंग फॉर मी. इट्स लाइक मोर ऑफ मार्केटिंग. His post or any supplements post, not just why should I name Suhail, probably this, any supplement thing, probably that works on the direct immediate relationship of that post to the sale. तो मेरा क्राइटेरिया यही है कि आई सी इट एज अ थिंग कि क्लाइंट, ये एथलीट बहुत हम्बल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, एंड वी वर्क क्लोजली विद ईच अदर, और दैट्स अबाउट इट. पोस्ट वगैरह जो हैं मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती कि कितना क्या है. मतलब मेरे को कोई आता है कि आपने इसको एथलीट लिया हुआ, इसकी एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, आपने इसको एथलीट क्यों लिया या इस बंदे को लिया, तो आप उसकी लाइक्स पे मत जाओ, उसकी एंगेजमेंट्स पे जाओ. एंगेजमेंट्स उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाता. सिंपल सा. बट ये काफ़ी क्वेश्चन आता है हमसे कि सर मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो कैसे स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, यू नो. सो आपके हिसाब से मोर अबाउट कि आप कितने हम्बल हो, कितनी आपकी हर इंडस्ट्री का डिफरेंट. You have won some good competitions, you are portraying yourself to be very nice, you have good post engagements, I don't know the word what it is, and controversy free. आपका कंटेंट अच्छा है, कंट्रोवर्सी फ्री, आप चलते हो, हम्बल हो, रिप्लाईज अच्छी हैं, तो anyone can pick you, I guess. You are good to go. Okay. So one key question के मतलब कि you know, as I want to ask you earlier, कि any one or two challenging time periods or incidents like which left a mark on your memory कि हाँ यार this was a challenging phase, be it COVID का हो या उससे पहले in your formative years, what is it you felt यार कि मतलब कि this is something that left a mark on you, or God has been extremely kind? No, God's been always kind. Even these jerks or speed breakers, any speed breakers even come in your life, still God's always kind. वो हम उसके अच्छे हुक्म को माने कि उसने किया, और बुरे हुक्म पे हम उसके कहें कि नहीं ये क्या कर दिया मेरे साथ, वो क्या कर दिया. तो अच्छे वाले पे हम उसको थैंक यू भी नहीं बोलते. करेक्ट. तो we lack gratitude, but we are full of wrong words when something wrong happens. करेक्ट. तो ऐसा नहीं है, चीज़ें काफ़ी होती हैं. दिस इज लाइफ एंड दिस इज बिजनेस ऑल्सो. So how did you, what was the learning, or what was your mindset at the time? How did you handle like any specific learnings or anything, you know, कोई खास कोई होता है यार कि यार ये बड़ा पंगा ले लिया एंड नहीं लेना चाहिए था, या यार ये झटका लग गया, अब इसको कैसे उसमें से निकले, you know? कई बारी some things happen which you regret instantaneously. You regret कि ये क्या हो गया, but when you give it time, then you understand कि ये जो हुआ अच्छा हुआ. हाँ, पहले आपको थोड़ा सा लगेगा, आप इंस्टेंट जो डिसीजंस पे आ जाते हो, या इंस्टेंट आपका थॉट प्रोसेस काम करने लगता है, तो वो हमेशा आपको नेगेटिव जगह पे ले जाएगा. कीप कूल. आप जब उसको करते रहोगे तो आई फील यू विल अंडरस्टैंड विद टाइम. आपको थोड़े दिनों में ही पता लग जाएगा जो हुआ वो अच्छा ही हुआ. तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे किसी चीज़ को. लेकिन यू हैव टू स्टे स्ट्रांग इन ऑल सिचुएशंस एंड कीप योरसेल्फ वेरी वेरी कूल. हरमीत पाजी को गुस्सा किस चीज़ पे आता है? As what I want to know, like what makes you angry, or you lose your cool, or what's made you lose cool? What is it that makes you tick? यार इधर तो पाजी मैं ना बीच का रिलेशन नहीं एक्सेप्ट करता. आई नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग विद एनीवन. तो या तो मैं आपके साथ हूँ या मैं आपके साथ नहीं हूँ. कभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं थोड़ा सा आपके साथ हूँ. ओके. मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको नहीं प्यार करता हूँ. मैं आपको ये बोलूँ मैं आपको पाजी थोड़ा सा प्यार करता हूँ, आपको कैसा लगेगा? करेक्ट. तो देयर इज आइदर येस और आइदर नो. मेरे को गुस्सा तो जो आता है वो जब कोई गलत करता है तो होता है, तो फिर मैं वो रिलेशन बोल के या बिना बोले व्हाटएवर आई फिनिश इट ऑफ फॉर एवर. मैं कभी भी नेगेटिव चीज़ को साथ लेके नहीं चलता अपने साथ.
If something wrong happens ever with me, किसी ने भी उस मेरे को कुछ गलत किया है, मैंने एक बारी आपसे बात कर ली, दूसरी बारी फिर कोई बात नहीं समझ आ रही, तो देन आई क्विट फॉर लाइफ. मैं फिर कभी भी किसी को अपने साथ कनेक्ट नहीं करता. Pretty strong. कोई गुस्सा नहीं है, मैं गुस्सा करने वाला कोई नहीं हूँ, बट either I keep the relation or I finish the relation forever. That's a finished thing. Okay. I want to talk about leadership. ठीक है, आपके पास टीम्स हैं, आपके साथ बहुत देर से कई बंदे जुड़े हुए हैं, right? What are some of the key leadership lessons? Like, you know, what according to you good leader must possess? कि आपके हिसाब से what is that? You know. Being a good leader, you have to understand and respect the people around you. Then you have to trust their decisions. You have to make them feel strong. People around you, they should feel strong with you. They should not be the ones secondary alongside. Otherwise, you will not remain a leader. आप किसी से ऊपर रह के दूसरे को हमेशा नीचे रखोगे कि आप लीडर हो, तो लीडरशिप पोजीशन आपकी खत्म हो जाएगी. You will not enjoy it. So trust people around you, delegate the duties and let them do. Loss, profit, all secondary. They will always be with you if you trust them and you give them that strength to get into anything. Trust your people, give them power, give them respect. That's what I understand in leadership. If I am at a position where I can't do everything myself. So I have to have right set of people and I have to trust them from my heart. Be it loss, because they will not do the same thing as you are thinking. They might do a different thing, different way. Trust them. That's the way, otherwise nothing, you will go nowhere. And tough conversations with your team, when you have to have tough conversations? We do, it's business. We do, because sometimes we are not on the same page. We do, and then we end up with the best one. Right. We end up with the best one. It might not be my decision, it can be someone else's idea. We work on that. We work on the right, best decision. So you're not averse to having tough conversations? No. And you need to have that mindset? Yeah, 100%. Okay. So, Paji, now let's change the topic a little bit. I want to see, okay, you know, Fitline is already a major force in the industry with God's grace. You know, solid, you know, household brand as far as commercial gyms go. Okay. So where do you see Fitline heading in the next 5 years? What's the vision? What's the goal? If we don't get into any bubble kind of business, what you see, the valuation kind of things happening these days, then we look at very organic growth year on year. So we are not looking at something very big. We increase our business per state per year. We don't get into all the states कि दूसरा कर रहा है तो हम भी करें, दूसरा यहाँ पे भी है तो हम भी जाएं. So out of all the states in India, we are just present strongly, physically, personally in 6 or 7 states, 8 states. Rest all are where our people are just going from Delhi or from other states to sell equipment. We sell everywhere, but wholeheartedly we are not like everywhere. We have service people at quite many places. So that's a very good thing we do. We choose one state 1 year and then we start the business in that, make it perfect, then select a new one. So it's an organic way of growth in Fitline that we do usually. So next 5 years, if you look at Fitline, we are looking at a reasonable, I'm not going into numbers, but a reasonable, decent growth with the similar kind of business, but much more things added to it. So since there, I mean, I know आपने पहले भी कहा है कि और इतने बड़े players हैं. So how do you see their competition? I don't know my size. If I am 4th, 3rd, 2nd, 5th, because I don't know their numbers. I don't know their strategies. So ranking for me is a useless thing. So do you see anybody as your direct competition? No, I
drink coffee with each other. I drink whiskey with everyone. It's okay. I go to everyone's place. I meet. I hug everyone. For me, no one's a competition. I'm very close to all the people. Very secure. I'm very close to all the people in the industry. I really want them to feel like I'm not a threat. I'm a friend. I'm a business associate. I'm a colleague. I'm a business associate. I'm a person who can help the industry grow, not their business, but the industry overall. So we can indulge into good topics, and all those kind of things can happen. I don't take anyone as my threat. We lose or win, but we are not enemies. We are doing our job. Correct. I'm running after a customer. I'm trying to close that deal. Other people are also trying to do that. But we are not enemies. We are just, I'm trying to win and I'm trying to do my job. They are trying to do their job. It's business, nothing personal. It's just business. So we are not enemies. So we are not pakke competitors. Like we all meet in the shows. We all will meet in IHFF. We all meet in China show. We hug, we talk, we spend our evenings together. Now we are Expo IHFF आ रहा है, from what I know, biggest stall at IHFF this year. Yeah. So what's that pressure like? What does that mean to you as a brand, as a person? Ke all eyes are on you. Pehle Jirai used to be the biggest ones, and then it's always between ye aap ho gaye ya pehle who sab hote the wo fitness world nahi hai sir itne active nahi hai, for whatever reasons, we don't know. He is very strong and he will always remain strong. Yeah. He started all this. He's a senior industry figure. Yeah, he's a good man. Yeah. So now what does it mean being, is this the first time that Fitline is having the biggest stall at HFF? No, we have been doing it. Like you've been doing it regularly. We have been having the biggest one last year also. Probably if it was not the only biggest, it was one of the biggest. So what does it mean? This is the biggest one this year. This is more of a branding exercise, or it's more of it makes financial sense to you as well? Oh, it does. It does benefit us in various ways. If you talk about financial sense, yes, definitely that is the market which we are targeting. I have opened my own showroom there. My son has moved to Mumbai to come with this kind of exercise there. We need to be present in a big way, right? So people always remember what they saw the best in the show. If you talk to them after 1 year or 2 years or 3 years, probably they know they saw it in that show. I remember that. I remember I met you. And then this time the booth is going to be a mix of educational events wherein you are also one of the speakers. We're going to send that posting out in a couple of days. Aminda sir is going to be one of the speakers. Then there is one arm wrestling competition. People in North or some other places towards this, Rajasthan, Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, they all know what Fitline does because we sell all directly here. And for us, it's like a new market, and still we are doing about 6 to 7 clubs, maybe 8 clubs in Maharashtra every month. There we want to show our presence not just as an equipment vendor. We want to show them that we are the company which is very strongly into iron games. We support bodybuilding, we support arm wrestling, we support almost everything that is associated with the health club industry. And then we also have a good spread of fitness equipment displayed there. Then we have educational seminars. So the idea is to give the visitors a feeling that this is like an all-rounder kind. Holistic. Not just equipment vendor. And IHFF has always been like a very successful show for us. The way they manage it, the way they give us importance, the way they handle things for us, the way they have their athletes, international and domestic athletes. Everything makes this show a grand gala show. So for us to invest there and get our money back, it's pretty okay, not bad. So
any last bit of advice or anything you want to share? You know, any message to anyone, to athletes, to up and coming people, industry जिसने join करनी हो, या to anybody, you know, the stage is yours, literally. You know, is there anything that you want to share with our viewers? No, all I want to say is like there are different very strong streams in the fitness industry, probably wherever you think you belong to. If you are a gym opener, you definitely can. It's a very lucrative industry. Don't give it a second thought. Invest in it, but give full time to it, as we discussed in the show earlier probably. So you give your full time, you take it as a full-time business, invest reasonably, keep your emotions aside. It will give you very beautiful return, and you will be ready for a second one maybe immediately in 1 year. I'm telling you, that's a word, because I've seen people growing from one gym to many gyms, and they're expanding, and they have taken it as a mainstream business, whatever they were doing earlier. This is a respectful business. It's a lifestyle business, gives you connections, keeps you socially connected, gives you money, and it's a legit business. It's a legit business. That's the best thing I can say. Secondly, if you're a trainer, work hard, keep growing step by step. Never look for shortcuts, and you will reach heights. People will be your fans. Your members will become your fans, and making fans in this industry is very important. Rather than making a client or a customer, try making them your fan. One person becomes your fan, he will never forget you, wherever he reaches. Third, you have become a successful athlete. In that way, I already conveyed my message. Stay humble, stay close to people who have given you heights. They have taken you high, they selected you on the stage, they praised you, they talked good about you. Keep respecting them. That's what people see. Never get into any kind of controversies. Stay away from all the negatives, and you will be always blessed with the best. Trust me, it's my word. Paji, wonderful having you. बहुत सारे लेसन सीखने को मुझे मिले. आई एम श्योर ऑडियंस को मिले होंगे. अगर कोई बंदा इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, एंड आई थिंक प्लेंटी ऑफ लेसन्स. एंड वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज, इफ समबडी वांट्स टू कम एंड वर्क विद यू, अगर किसी ने आपके साथ जॉब लेनी है, मतलब वो कहता है मुझे इक्विपमेंट इंडस्ट्री में घुसना है, पैसा नहीं मेरे पास, लेकिन मैं 5 साल डालने के लिए तैयार हूँ, व्हाट इज योर हायरिंग क्राइटेरिया? व्हाट डू यू लुक फॉर? There is no specific thing. If a person wants to join us for sales, first thing is, again coming back to that thing, I refrain from these kind of talks when I'm on sure portals. I want that person to be very nice, like always talking about our product rather than talking crap about other products. Right? Very good point. We have 5 minutes when a client gives a 5 minutes to whether he will be staying with us or whether he is not working with us. So those 5 minutes have to be very wisely used. Then only he will ask you to sit, otherwise he will simply tell you that, sorry, let's meet later someday, stay connected. So people have to be smart in that way. They need to be very humble, they need to be legit, they have to be well spoken, they have to be presentable if they have to join us. Rest we groom them. Yes, how to training, how to get them the blood, taste of the blood that we know very well. Mm-hmm. How to give them growth, how to make sure they expect 2 and we make them make 5, make them 6. That's our job. That's your job. Yeah. Yes. All right, well, wonderful having you, Paji. Thank you so much for your time. It's been an absolute pleasure. And any questions and comments you have for him, you want to reach out to him, आप नीचे comment कर सकते हैं. हम लिंक डाल देंगे, हम जो बिग फिट क्लासिक है फिट लाइन के लिंक नीचे हम शेयर कर देंगे. आपने इक्विपमेंट लेनी है, कुछ भी है, इनके वेबसाइट के लिंक वगैरह सारे, इंस्टाग्राम के हैंडल के लिंक, वो सारे हम नीचे डाल देंगे.
आप प्लीज डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके आप रीच आउट कर सकते हैं पाजी को। पाजी इज वेरी एक्सेसिबल। इंस्टाग्राम का इनका हैंडल भी हम डाल देंगे, फिटलन की भी डाल देंगे, शो का भी डाल देंगे। बाकी कोई हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस हो डायरेक्टली आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपने पाजी को या पाजी की टीम को कांटेक्ट करना है तो वो नीचे लिंक्स होंगे, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।